Found questions like this haunt our mind lot of times. And next, will I be in inter or will I not be in inter? Where will I be? Again, such questions haunt us lot of times. One thing that I want you all to listen to, एक स्टोरी बताऊँ तुम्हें छोटी सी. सभी ने बैम्बू ट्री नाम सुना है ना? बैम्बू देखा है? बांस, तो ऐसे बांस की बात नहीं करी जो पैर में फास्ट छुप जाए, वैसा बांस नहीं, बांस स्ट्रॉन्ग है ना. जब बांस का पौधा लगाया जाता है, बीज बांस का लगाया जाता है, आप ये माने अप्रॉक्सीमेटली 1 साल पूरा कांस्टेंट के बाद देखें तो कोई पेड़ नहीं होगा. अगले साल वापस कुछ भी नहीं, ऐसा लगे जैसे कि द सीड हैज़ डाइड. तीसरे साल कुछ नहीं, चौथे साल भी ऑलमोस्ट नियरली कुछ नहीं. तो आप ये मानो 365 इंटू 4 कर दो, जितना भी निकल के आ रहा है इतना समय लग गया और कुछ नहीं दिखता. क्लियर ऐसे ही लगे जैसे कि नथिंग इज़ हैपनिंग, इट्स ऑल डेड. एंड ऑल ऑफ अ सडन it starts growing and it reach height of around 80 feet. What am I saying? 80 feet. Normal height आप हमकी 5 से 6 फीट के रेंज के होते हैं. 80 feet in just a few weeks and it becomes straight, extremely strong. Bend नहीं होता वो दूसरे पौधों की तरह, कहीं गिर नहीं रहा होता. It's very strong, unshakable, straight and tall. So this is what nature wants us to understand and learn. And what is that? It might take some time. It might take little more time. But there is difference in other trees, the ordinary trees, जो 2, 4, 5 दिन में ही उनका एकदम से पौधा निकल आता है और लगता है लो क्या बात है, पेड़ उग रहा है, पौधा उग रहा है. And on the other hand, we look at this that it is taking even 4 years and nothing is happening. So apparently तो ऐसा लग रहा है as if it's taking so much of time. But अगर आप देखें तो what is happening in that time is उसकी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं. जड़ें, the roots, they are becoming stronger, they are penetrating, they are going deeper and deeper. And because of that what happens, the moment it takes its height, then it becomes unshakable and it becomes so tall. तो ये आपको नेचर समझाना चाहता है. आज के टाइम में इन द वर्ल्ड ऑफ AI वी हैव बिकम सो क्विक इन टर्म्स ऑफ बस जल्दी से रिजल्ट मिल जाए. हमने कुछ डाला और रिजल्ट निकल के आ जाए. जेमिनाई में डाल दो, आप इधर डाल दो, उधर डाल दो, बस डाला नहीं कि कुछ हमें प्रॉम्प्ट डालो और रिजल्ट निकल के आ जाए. एजुकेशन इज़ नॉट दैट. मार्क माई वर्ड्स, एजुकेशन इज़ नॉट दैट. व्हेन आई स्टडीड आई हैड टू सैक्रिफाइस. आई हैड टू leave all the schedule, all parties, all celebrations, remain awake, study for hours and not even look how am I looking like. Fact बता रही हूँ मैं. Leave everything aside and just studies, and we have to do that. And sometimes result actually doesn't come, but do not question your मेरा नसीब ऐसा. Do not question ICI is doing this. Do not cry. Do not search for a shoulder to cry on. No. You need to understand that you are strong. It's just that your roots are getting strengthened. And once they become so strong that they penetrate deep in, then you will become unbeatable, unshakable. So if we find that our friends have reached inter and we couldn't, this doesn't mean that we are a failure, not at all. It's just that we need to become little more strong in our basics, in our roots. We need to take a little bit of corrective measure and we will be the best. And we don't need anybody's confirmation for that. We don't want anyone external to come and say you are doing great or you are doing bad. No, we don't need that. We know what we are, but we need to know what we are. That's very important. You need to know where you're standing. You need to know, am I good at maths or not? Am I good at accounts or not? Or is it just that I have done some questions and I want to pass? No.
education is not that easy. The real education does take time. You need to become perfect with your subjects. So all my children sitting here, just you have to understand one thing. On one end, you have ICAI, which has taken a kind of run. We will not give result more than 15%. This is what we can see very clearly in CAF happening. I used to teach here and tell children 35% रिजल्ट आएगा, एंड दिस वॉज द एग्जाम्पल आई टू गिव इन दिस हॉल ओनली. 35 से 30% ICAI का रिजल्ट आएगा, विच मीन्स 1/3, विच मीन्स 3 रो हैं तुम्हारी, तो 3 में से एक ही रो पास होती है, 2 रो फेल हो जाती है. एंड व्हेन आई यूज्ड टू से दैट, चिल्ड्रन यूज्ड टू गेट ऑफ कोर्स टेंस्ड. क्या मतलब क्या बोल रही है मैम, 2 रो फेल 1 रो पास, ऐसा होता है क्या रिजल्ट? अब आज देखिए आप, व्हेन वी आर सेइंग 15%, व्हाट डज इट मीन? It's not even 1 row. This is the reality. This is what institute is doing. So what to do, ma'am? Leave, run away? No, that's not the thing. आपको ऐसे अपन क्या ज़िंदगी में हर चीज़ से भागते रहेंगे? नहीं. अगर कोई चीज़ को चुन ली है और हम चाहते हैं कि हम वो बने, तो इस बात का मतलब अब कोई भी आ जाए सामने, ठीक है मुकाबले के लिए हम तैयार हैं, आइए सब, आप बताइए क्या करेंगे. ICAI हमारे अपनी तैयारी से देख लेते हैं, ख़त्म हो गई बात. ये आपको अपना माइंडसेट रखना पड़ेगा. अपने को टॉपिक सीखने पड़ेंगे, अपने को लिख लिख के मेहनत करनी पड़ेगी. और ये बोले हम यार बहुत कुछ है करने को, कैसे करें, कैसे क्या बात होती है. सारे CA फाउंडेशन के ही बच्चे हैं, सारे सेम एज के होते हैं, ऑलमोस्ट 17, 18, 19, किसी के अटैम्प्ट लग गए तो 20, यही एक एवरेज रेंज है. ऑलमोस्ट IQ सबका सेम है, ऑलमोस्ट परेशानियाँ सबकी अपनी अपनी हैं, कोई भी परेशानियों से वंचित नहीं है. बोले हमें कोई टेंशन ही नहीं है, सबके सामने कुछ ना कुछ है. बस एक ही बात है, आपको चीज़ों को चुनौती की तरह लेना है. सुबह शाम करना पड़ेगा आपको. जिस पल आप वक्त बर्बाद कर रहे हैं, तो आपको सवाल करना खुद से, एक दिन भी बर्बाद किया तो मतलब बहुत बड़ा नुकसान. मेरे पास 3 दिन पहले एक बच्चा आया, वो कई अटेम्प्ट से इंटर में अटका हुआ है और अब उसके सारे फ्रेंड्स पास हो चुके हैं. तो मेरे पास आया और आके बोलता है कि मैम अब तो सब निकल गए, ऑलमोस्ट मैं ही रह गया हूँ. तो मैंने उससे कहा कि बट अभी तो हाल फिलहाल तो तुम डिज़र्व ही करते थे रहना. तो हंसने लगा मुझे देख के, मैंने भी हंसी मन करके, तो सच्चाई तो हाँ मैम पढ़ाई तो सही हुई नहीं थी. खैर जब मैंने उसको बताया कैसे क्या करना है क्या नहीं, सो ही स्टार्टेड डूइंग हिज स्टडीज़ एंड ही इज़ डूइंग हिज प्रिपरेशन. तो अपने को ये समझ में आना चाहिए कि भाई 5 अटेम्प्ट भी लग जाते हैं लोगों को, 6 भी लग जाते हैं, 8 भी लग जाते हैं. नहीं पढ़ रहे होते तो सारे दोस्त पास होकर आगे बढ़ जाते हैं. और अगर हम कर रहे होते हैं, दोस्तों का नहीं पता, लेकिन हम ज़रूर आगे बढ़ जाते हैं. तो ऐसा है. तो अपने को गिव अप वाली कहानी में नहीं जाना है, नेगेटिविटी में नहीं जाना है. प्रिपरेशन तगड़ी करना चाहिए. जो सब सब्जेक्ट उठाओ, बस हर सब्जेक्ट से आपको, सीधी बात कहूँ, यू शुड लव योर सब्जेक्ट. और टिपिकल लैंग्वेज में कहूँ तो आपको अपने सब्जेक्ट से मोहब्बत होना चाहिए. सीधी बात, लव योर सब्जेक्ट में वो तासीर नहीं है जो मोहब्बत शब्द के अंदर है. तो आपको एक्चुअली अपने सब्जेक्ट से मोहब्बत होना चाहिए. क्या मतलब, मैं पढ़ने बैठा हूँ अकाउंट्स तो आई विल एन्जॉय. मैथ्स कर रहे हैं, ठीक है नहीं आती थी बट यार सीखनी तो है ना, तो हम जितनी बेस्ट है करने के लिए लगे रहेंगे. और उठाते से बुरे मुंह बनाते रहेंगे, फिर यार बनता ही नहीं है साला, करते ही नहीं. अब आप इतने बुरे मन से पढ़ेंगे तो कैसे बेचारा फिर प्रोसेस होगा, नहीं होगा ना. तो अपने हिम्मत बनाए रखिए, मेहनत का स्तर बढ़ाइए, सेल्फ डाउट में मत जाइए. लाइफ में अच्छों के साथ बहुत ऊपर नीचे हो जाता है. तो जो बच्चों ने मुझे मैसेज डाल के, कुछ ने तो हद ही कर दी, वो तो भाई कह रहा अब तो जीना ही नहीं है. मैम आप इस मैसेज का रिप्लाई कर दीजिए 15 मिनट के अंदर, नहीं तो बस, तो अब मैंने पूरी तैयारी कर ली है. नहीं तो पढ़ाते पढ़ाते जान निकलने लगती है. पता पड़े है ना, करे ऊपर वाला कि कुछ हुआ गया, बोले आखिरी मैसेज तो इन्हीं को किया था. यही है कसूरवार, यही है वो जिसने वक्त नहीं दिया उस बच्चे को, और वो बेचारा. ऐसी बातें नहीं करनी होती यार. मतलब अरे करा भाई, रिप्लाई तो करना. अपनी ऐसी तैसी हुई पड़ी होती है, देख लो किसी बच्चे का नोटिफिकेशन कि नहीं भाई कैसी बात है, ऐसी बातें नहीं करना है. बिल्कुल. क्या बोल रहे हो? नहीं तुम तो सब बच्चे ही प्यारे, मैं बता रही हूँ इमोशनल स्टेट. कभी कभी ऐसा सीधे बोले मैम आप 15 मिनट में रिप्लाई कर, नहीं तो मैंने पूरा बंदोबस्त कर लिया है, ICAI ने मुझे छोड़ा नहीं है जीने के लिए. ऐसी बातें नहीं करते बिल्कुल. इमोशनल ब्लैकमेल. चलिए लेट्स बिगिन आवर स्टडीज़. मुस्कुरा के, खुश रह के, अपनी पढ़ाई अच्छे से करके कामयाब हमें होना है.
ओके, यस और नो एवरीबॉडी? ओके, चलिए कॉपी में आए आप अपने। कोई बच्चा ऐसा है क्या जो बच्चा इस बैच में आज फर्स्ट डे आया हो पहली बार और वो ये नहीं जानते कि बैठी कौन है? बातें तो बहुत कर ली। एनीवन बाय चांस? ओके, तुम बता देना। पढ़ाती हैं बेचारी हैं, बाकी तो समझ में आ जाए, उसको जानते थे, तुम लगे अपनी। चलिए हेडिंग डालिए बच्चे, चैप्टर नंबर 8। ऑनलाइन में अगर कोई है तो बेटा ऐसा है कि मेरा नाम है मैसरा और मेरा काम है पढ़ाना। बाकी अच्छा बुरा तो आपको जो लग जाए, प्रयास अच्छे की रहती है। क्या पूरा नाम बोलो? ठीक है चलो छोड़ो। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर का नाम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चलो मेरे बच्चे, अब आप लोग सारा अपना डिस्कशन हो गया, पढ़ाई पे वी आर ऑन। ये चैप्टर एग्ज़ाम के अंदर 8 से 10 से 14 से 20 तक का भी वेटेज का सीधा क्वेश्चन आ सकता है, स्ट्रेट, एंड इट हैज़ कम मल्टीपल टाइम्स ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स, तो आप इसके पकड़ के चलेंगे, ठीक है। दूसरी बात इस चैप्टर की ये है कि ये चैप्टर बेचारा, इसकी कोई इज्जत ही नहीं है। क्यों मैम? मैं जब थी 11th स्टैंडर्ड में तो ये चैप्टर था 12th में, मैं गई 12th में, या आ गया 11th में। समझ नहीं आया कि ये सिस्टम क्या है क्या, और अब धीरे धीरे करके उन्होंने 11th 12th से हटाई दिया। फिर सीए फाउंडेशन के अंदर था, नहीं इंटर में था, अब हम इंटर गए, हमने तो खैर पढ़ा, तो वो फिर कहाँ डाल दिया? सीए फार्म। भाई इसको बेचारे को फेंकते ही रहते हैं बॉल की तरह, कभी वहाँ से यहाँ कभी यहाँ से वहाँ, लेकिन जिसमें भी होता है आता बड़े मार्क्स का है ऐसा, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है। तो यहाँ पे आपको बनना पड़ेगा कॉन्सेप्ट का चैम्पियन, तभी क्वेश्चन हो पाता है, सीधा रूल है इस चैप्टर का। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द बेसिक पोर्शन। कॉपी में आप आइए, लिखना स्टार्ट करिए। These are organizations, फटाफट से हम स्टार्ट करेंगे बच्चे। These are organizations working for some, these are organizations working for some charitable oblique social objective, charitable oblique social objective. These are organizations working for some charitable oblique social objective। नाम से आपको कुछ बात समझ में आ गई क्या? क्या समझ आया बताइए फटाफट से। किस काम के लिए, क्या मेहनत क्या कर रहे हैं? चैरिटेबल। किसके लिए लगे हैं? चैरिटेबल पर्पस। ठीक, आगे हम पॉइंट लिखते हैं, लेकिन उससे पहले आप यहाँ 2 मिनट इन्वॉल्व हो जाओ, मुझे कुछ एग्जाम्पल्स बताओ। अरे ठीक, NPO का एग्जाम्पल है, NGO। बताइए कुछ एग्जाम्पल, आपको क्या लग रहा है कि क्या क्या क्षेत्र में ये हो सकता है? स्कूल अच्छी बात है, लेकिन बात एक है कि आजकल अधिकतर जो स्कूल्स हैं वो इस कैटेगरी के नहीं होते। वो NPO में रजिस्टर तो कराते हैं, लेकिन काम है। क्या बोल रहे हो? हॉस्पिटल गुड। सेवा सदन नाम का हॉस्पिटल आपने शायद सुना हो, बैरागढ़ पर है। तो बैरागढ़ पे जो हॉस्पिटल है सेवा सदन नाम का, एक्चुअली वहाँ पे आई टेस्ट एंड ऑल जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं वो बहुत कम रेट में कर दिए जाते हैं। सो ये इस कैटेगरी में आ सकता है। और क्या एग्जाम्पल दे रहे थे? गुरुकुल का एग्जाम्पल आया था, परफेक्ट एग्जाम्पल है, परफेक्ट। व्हाट एल्स? ओल्ड एज होम्स, परफेक्ट। और क्या आ जाएगा? ऑर्फनेजेस आ जाएंगे इसके अंदर। और कुछ क्या बेटू? क्लब। वाओ, क्लब। इतनी खुशी में बोला, मैंने देखा कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है, बट हो रहा है। कौन सा सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा होता है क्लब से? कौन सा? वी आर टॉकिंग अबाउट
वो जो किटी पार्टीज टाइप के ग्रुप नहीं होते हैं आजकल, जो बहुत चल रहा है, सारे बैठेंगे इकट्ठा एक दूसरे को गिफ्ट देते रहते हैं, वो भी इसमें आ जाता है। उसमें आपका मानसिक संतुलन सही रहता है, ये दुनिया की स्ट्रेस कम तो ये भी इसमें आ जाएगा पैच। ओके गुड। ऑनलाइन एग्जाम्पल आया है एनिमल वेलफेयर सोसाइटी, करेक्ट। जैसे स्पेशली वो जो डॉग लवर्स नहीं होते, उनका आजकल स्पेशल कैट लवर, डॉग लवर, ये सब आ जाएगा। और क्या, कौन सी शाला? गौशाला, हाँ वो भी आ जाएगा। और कौन सी शाला? राइट, यस यस। बेटू हाथ उठाते तो बोलो ऐसे, क्या पता क्या। आंगनबाड़ी इसमें नहीं आएगा। आंगनबाड़ी इसमें अभी सही बोल रही हूँ, बट काइंड ऑफ इसमें आएगा। वो एक सरकारी संस्था है, गवर्नमेंट के अंडर आता है। यस, एक मिनट बच्चों, क्या? नशा मुक्ति केंद्र। ओह भैया माइक दूसरा ला देना, ये माइक ही चला गया। इसके नशा मुक्ति केंद्र में मेरा माइक ही चला गया, इतना खतरनाक एग्जाम्पल दे डाला। श्रमदान, सेकंड पॉइंट लिखना तो स्टार्ट करूं। ऐसा नशा मुक्ति केंद्र आया, माइक नहीं साथ छोड़ दिया। क्या, किसको भगा दो? क्या कह रहा है ये? तुम्हें वहां से भी भगा दिया? उन्होंने कहा ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। हेलो नहीं बोल रहा ना, नहीं चल रहा, दोनों ही नहीं चल रहा है। दोनों कैसे चलेगा एकदम? वहीं से कुछ इशू है। बच्चे सेकंड पॉइंट लिख लो ना, सेकंड पॉइंट लिख लो इतनी देर में। सेकंड पॉइंट लिख लो जब तक। भैया ये भी नहीं चल रहा। भाई तुम्हारा नशा मुक्ति केंद्र तो बहुत ही खतरनाक था, सारे के सारे माइकों ने दम तोड़ दिया। हाँ माइक मुक्ति। हेलो 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 हेलो। ये नहीं, एक मिनट, चलिए फाइनली। सो नशा मुक्ति केंद्र ऐसा फिल्म में आया कि माइक मुक्ति केंद्र हो गया। चलिए सेकंड पॉइंट लिख रहा है यहाँ, दे डोंट एम फॉर प्रॉफिट फॉर पर्सनल वेलफेयर। दे डोंट एम फॉर प्रॉफिट फॉर पर्सनल वेलफेयर। ये नशा मुक्ति केंद्र से कोई जल्दी छूट के आ गया है या मुझे वो असर जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो। दे डोंट एम फॉर प्रॉफिट, दे डोंट एम फॉर प्रॉफिट फॉर पर्सनल वेलफेयर, दैट इज नो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज नो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस, नो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस, rather the entire funds are used for the social objective. Rather the entire funds are used for the social objective.
rather the entire funds are used for social objective. अब इस पॉइंट को ज़रा लॉजिकली समझ लो. लेट्स अंडरस्टैंड इट लॉजिकली. सपोजिंग कोई एनपीओ बना. अब जब एनपीओ बनता है तो उसके ऑब्जेक्टिव उसका जो उद्देश्य है उसमें लिखा होता है कि वो इस काम के पीपल ऑन द लास्ट इनफ. सो उसके ऑब्जेक्टिव में उद्देश्य में लिखा होता है कि किसके लिए काम करेगा. तो सपोजिंग वो काम कर रहा है ह्यूमन राइट्स के लिए, या फॉर एग्जांपल वो वर्क कर रहा है फॉर जेंडर इक्वालिटी के लिए, या वो वर्क कर रहा है से फॉर लाइक एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए एंड सो ऑन. तो उनके पास जो भी पैसे आएंगे, जो भी डोनेशंस आएंगे, गवर्नमेंट से कोई फंडिंग आएगी, इंटरनेशनल कोई फंडिंग आएगी, उस पैसे में से वो कोई भी पैसा घर पे पर्सनल यूज़ के लिए नहीं निकाल सकते. कोई भी पैसा पर्सनल यूज़ के लिए नहीं निकाल सकते. ये स्ट्रिक्ट नॉर्म होता है. बात लॉजिकल भी है यार. लोगों ने पैसा आपको इसके लिए दिया था ताकि आप ये सोशल पर्पस पूरा करें. आप पैसे निकाल के अपनी शॉपिंग करेंगे और घर खर्चे से करेंगे, तो हाउ विल दिस वर्क? इज दैट क्लियर? तो यहाँ से कोई पैसा निकालना अलाउड नहीं है. दिस इज़ नॉट अलाउड. अब ज़रा हम कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं. प्लीज़ कम टू योर कॉपी एंड राइट. कोई इसकी लिमिट नहीं है. एनपीओ कैन बी इन एनी क्षेत्र. हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं फॉर आवर आइडिया. पहला आप लिख रहे हो एनिमल वेलफेयर. एनिमल वेलफेयर. अब इसमें सब अलग अलग आ जाएंगे, चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स के लिए कोई वर्क कर रहा है, कोई डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए वर्क कर रहा है, कोई ओवरऑल कर रहा है, जो भी. एनिमल वेलफेयर. अगला वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन. फॉरेस्ट प्रोटेक्शन. फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कि पेड़ ना कटे, डिफॉरेस्टेशन ना हो. वो सुना होगा ना कभी स्कूल टाइम में, वो चिपकू मूवमेंट था, याद है? वो पेड़ को ऐसे गले लगा के खड़े हो गए थे, कोई नहीं काटेगा हमारा पेड़. तो वो उससे वो लोग अगर एनपीओ ये सब बना लेते हैं इस क्षेत्र में तो इसमें आ जाएगा. चलो नेक्स्ट, एजुकेशन. एजुकेशन, स्कूल्स, ऑर्फनेज. ऑर्फनेज, इम्पॉर्टेंटली ऑर्फनेज. रिलीजियस प्लेसेस, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है रिलीजियस प्लेसेस. चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, ये सब इसी में आते हैं. बताइए क्या वहाँ फंडिंग आती है? फंडिंग तो बहुत आती है, फैक्ट है ये. चाहे आप चर्च की बात करें, टेम्पल की बात करें, मॉस्क की बात करें, गुरुद्वारे की बात करें, पैसा तो अच्छा खासा आ रहा होता है. नेक्स्ट, हॉस्पिटल. हॉस्पिटल. अगला, ओल्ड एज होम्स. ओल्ड एज होम समझते हैं, जहाँ बदकिस्मत बच्चों के माँ बाप रहते हैं, ये बोलना बेहतर है, वो जगह होती है ओल्ड एज होम्स. आगे, लैंग्वेज प्रमोट करने की जगह. लैंग्वेज प्रमोट करना समझ आता है? एक हमारे क्लाइंट थे, तो उनका काम ही एक था, उनके एनपीओ का संस्कृत को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना. तो उनका जो एनपीओ है वो काम ही इसके लिए करता है. सो अगर किसी को लगता है यार मेरी जो हमारी कल्चरल लैंग्वेज है वो गायब हो रही है ओवर द पीरियड, तो वो इसके लिए एनपीओ बना सकते हैं जिसमें लोगों को वो फ्री में ट्रेन कर रहे हैं और अलग अलग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स रख रहे हैं इस क्षेत्र में, ताकि वो जो लैंग्वेज है वो कंटिन्यू करें. नेक्स्ट लिखो आप, कंज्यूमर प्रोटेक्शन. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड सो ऑन. हैज़ एवरीवन रिटन? अब हमारे पास एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये टॉपिक क्यों पिक्चर में आ गया? द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल एंड क्लियर. क्या इसमें फंड मूवमेंट हो रहा है? यस. पैसे आ भी रहे हैं, पैसे जा भी रहे हैं. सो वी आर द वंस हू नीड टू नो दैट व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ अकाउंटिंग. पहली जिम्मेदारी क्या हो गई? व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ अकाउंटिंग. जो फंड्स आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, उनको हमें कैसे अकाउंट फॉर करना है. दूसरा इम्पॉर्टेंट रोल सीए का क्या है यहाँ पर? शायद आप लोग ने सुना हो, टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स में ऐसे एनपीओज़ को अगर रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है सीए द्वारा, सीए उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, तो उन पर टैक्स ही नहीं लगता. क्या होता है? उन पर टैक्स ही नहीं लगता, तो उनको पूरा वहाँ से छूट मिल जाती है. उसका भी रजिस्ट्रेशन कौन करवाने का काम करता है? सीए. तो दो काम क्या समझे हमने? हमें क्यों ये चैप्टर दे दिया उन्होंने? तो पहला क्या रोल समझ आ रहा है? अकाउंटिंग. दूसरा क्या आ गया? रजिस्ट्रेशन. तीसरा एक और बात सुनो,
अगर रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है इनकम टैक्स के अंतर्गत प्रॉपर और परमिशन मिल गई तो एक और फ़ायदा है, वो बताऊँ क्या फ़ायदा है? सुनो, तुम खड़े हो अतिशय और एग्जाम्पल सुनना। मानिए मैं एक NPO हूँ जिसका इनकम टैक्स के अंडर 12AA में रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो अगर ये फॉर एग्जांपल कोई सैलरीड व्यक्ति हैं या इनका बिजनेस है, ये कमाते हैं और अगर ये मुझे डोनेशन देंगे तो मेरे पे तो वैसे ही टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ये जब मुझे डोनेशन देंगे तो इनकी भी टैक्स में छूट मिल जाएगा, इनको भी टैक्स के अंदर रिलीफ मिल जाएगा। ये भी बेनिफिट का काम कौन करवाता है? CA हेल्प करा देता है ये रजिस्ट्रेशन करवाने में। समझ में आई आपको बात? बेटर बेटर। तो ये अलग अलग पॉइंट्स आते हैं। सो देयर इज़ अ बिग एरिया। आगे जब कोई CA प्रैक्टिस करता है तो इस एरिया में जायज़। फ्रॉड नहीं है, बोल रहा टैक्स फ्रॉड, अरे कैसी बात, मनी लॉन्ड्रिंग, हेलो कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे 2 नंबर का काम थोड़ी ना कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नॉट फ्रॉड, रूल्स में लिखा है, तो आप उन रूल्स का इस्तेमाल करके आप वो काम को करवा पाते हो। क्या नहीं, ऐसे भी साइन लगता है अपना। बना लिया। क्या बना लिया? हाँ पैसा डाल रहा। हाँ, तो ऐसा तो चलता ही है ना। आप ऐसी बातें नहीं करते माइक पे, अपन अलग से बात करते हैं ऐसी। चलिए, सो लुक हियर ऑन द स्क्रीन। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ लूँ, सपोजिंग कोई रिलीजियस प्लेस है। अब जो रिलीजियस प्लेस है इसको यहाँ पे डोनेशन मिलते हैं बिल्कुल, तो चंदा पेटी लगी होती है। उसके बाद लेगेसी, किसी व्यक्ति की अपने विल में लिख देता है कि मेरी डेथ के बाद इतना इतना अमाउंट मेरे पूरे फंड्स में से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जहाँ भी वहाँ दे देना। यहाँ से भी पैसा मिलता है। आपने देखा ही होगा अधिकतर मंदिर मस्जिदों के बाहर दुकानें छोटी छोटी सी बन गई होती हैं, उसका भी किराया आ रहा होता ही है ना ऐसा। सो इनका दूसरा सोर्स ऑफ इनकम हो गया रेंटल इनकम। उसके बाद गवर्नमेंट जो है उससे भी ग्रांट्स आती हैं, तो पैसे तो आ रहे हैं जम। उसके बाद खर्चे भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि मेंटेनेंस का खर्चा नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी जगह है, बिजली का बिल बहुत आता है। उसके बाद अगर हम कहें सफाई का बिल्कुल पैसा लगेगा, मेंटेनेंस है उसका पैसा लगेगा, प्रीस्ट है तो वहाँ पे जो भी प्रीस्ट है, जैसे कोई आपके पंडित जी हों, कोई मौलवी साहब, उनको भी तो तनख्वाहें देनी होती हैं, तो ये उसका हो गया। फादर हो चर्च में। उसके बाद बिल्डिंग ख़रीद रहे हो, बना रहे हो, उसके भी पैसे लगेंगे। तो समझने की बात ये है कि आ तो रहा है पैसा, लेकिन पैसा जा भी रहा है। इस पूरे के अंदर इसको मैनेज कौन करता है? मैनेजिंग कमेटी। हर एक रिलीजियस प्लेस की कोई मैनेजिंग कमेटी होती है जिसमें 3, 4, 5, 8 सदस्य होते हैं। ऐसे ही जो दूसरे भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NPOs हैं, सबकी मैनेजिंग कमेटी होगी। उसमें कोई प्रेसिडेंट होगा, कोई ट्रेजरर होगा, कोई चेयरमैन होगा। उनके पास पूरा डिसीजन लेते हैं, वो लोग हिसाब किताब रख के चलते हैं। सरप्लस हो सकता है, सरप्लस का मतलब जो पैसे आए वो क्या है? अधिक। जो पैसे गए वो कम है, सरप्लस हो सकता है। और डेफिशिएंसी भी हो सकती है, तो उसको वो लोग अपनी तरफ से पैसे लगा लोगों के समाव मैनेज करते हैं। क्या सरप्लस को घर ले जा सकते हैं, डिविडेंड बांट सकते हैं? नहीं। वो बोले अरे हम तो इतनी मेहनत करते हैं, यहाँ दिन भर बैठे रहते हैं, काम कराते हैं, पैसे ले जाए, नहीं ले जा सकते, नॉट अलाउड। वो आपकी मर्जी है, आपको करना है करो, नहीं करना नहीं करो। फंड्स आप घर नहीं ले जा सकते इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सरप्लस को काय के लिए यूज़ कर सकते हैं? ओनली फॉर फर्दरेंस ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव। उसी पैसे को रखो, आने वाले साल में उस पैसे को और लगाओ, ताकि आपका जो सोशल ऑब्जेक्टिव है वो और पूरा हो पाए। घर ले जाना पैसा अलाउड नहीं है। क्या आपको ये पूरी बात समझ में आ गई? सबको येस और नो? तो फंड्स आ भी रहे हैं, फंड्स जा भी रहे हैं। मैनेज कौन करता है? मैनेजिंग कमेटी। और मेनली वो लोग कई बार अपने पास एक अकाउंटेंट रख लेते हैं हिसाब लिखने के लिए, लेकिन ईयर एंड पे जो ऑडिट करने का काम है, सारे अकाउंट्स को चेक करने का काम है, वो सब किसके पास है? CA के पास। ठीक है। हाँ, NPO सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट होता है बेटा, उसके अंडर कंपनी फॉर्म में रजिस्टर हो सकता है। चलिए, अब हम आ रहे हैं हमारे टॉपिक की ओर मूव कर रहे हैं। लिखो जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, NPO को अपने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, मतलब फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स NPO के 3 चीज़ें आती हैं। उसमें 3 चीज़ें आती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और क्या 3 चीज़ें आती हैं? पहला
receipt and payment account. What is the name? Receipt and payment account. Receipt and payment account. नाम से पकड़ू तो बात है रिसीट एंड पेमेंट, कैश का आना, कैश का जाना। एनपीओ के पास कहाँ से कैश आया और कहाँ कैश गया। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सेकेंड इज व्हाट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा बैलेंस शीट। तीसरा बैलेंस शीट। 3 चीज़ें अपने पास आती हैं। क्या ये नाम आपके डन है? कितने लोग लिख चुके हैं? परफेक्ट स्पीड, गुड। तो हम आगे फर्दर जा रहे हैं और वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट हेडिंग। जाइए और लिखिए फर्स्ट हेडिंग, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट लिखा। अब मेरी बात यहाँ सुनो सब बच्चे, जब मैं तुम्हें यहाँ पॉइंट्स लिखवाऊंगी तो वो 2 जगह काम आएंगे। एक क्वेश्चन पेपर में ट्रू फॉल्स में, कहाँ काम आएंगे? पेपर में ट्रू फॉल्स। दूसरा ये काम आएंगे जब आप क्वेश्चंस करोगे। यही वो पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से हम क्वेश्चन इजीली कर पाते हैं। तो कोई थ्योरी रटने के लिए नहीं है, समझने के लिए है, ताकि क्वेश्चंस आपके बहुत इजी हो जाएं। लिखना स्टार्ट करिए। पहला पॉइंट, इट इज़ अ समरी ऑफ, it is a summary of, it is a summary of all cash, it is a summary of all cash and banking transaction, it is a summary of all cash and banking transaction, it is a summary of ऑल कैश एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शन। क्या ये आपने लिखा? आप सबके पास हाइलाइटर है क्या? तो हाइलाइटर से वर्ड मार्क करिए समरी और मार्क करिए कैश और बैंकिंग। समरी, कैश और बैंकिंग। मार्क करा? चलो अब ध्यान यहाँ बेटू, समरी का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो बहुत विस्तार में है या संक्षिप्त में? संक्षिप्त, शॉर्ट। विस्तार नहीं, शॉर्ट में, वो क्या हो जाएगी आपकी? समरी। अब गौर से बात सुनो और समझो। साल भर अलग अलग डेट्स में कैश आता है। 365 दिन है, चलो मान लो 65 दिन काम नहीं चला, तो 300 दिन काम अगर चल रहा है तो कहीं से कैश आया, कहीं गया, कहीं आया, कहीं गया, कहीं आया, कहीं गया। 300 एंट्रीज़ हो सकती हैं अगर हर दिन एक हुई, 600 एंट्रीज़ हो सकती हैं, 1200 एंट्रीज़ हो सकती हैं, क्योंकि कैश का तो इतना मूवमेंट होता है। तो रिसीट एंड पेमेंट क्या है? रिसीट एंड पेमेंट एक समरी है। क्या है? समरी। किसकी समरी? कैश बुक। किसकी समरी? कैश बुक। जब मैं अगर आपको कैश बुक के बारे में कहूँ तो कैश बुक कुछ इस प्रकार होती है। आप उधर डेट डालते हो, इस डेट पे ये पैसा आया, इस डेट पे ये पैसा आया, इस डेट पे ये आया, इस डेट पे ये गया। तो ऐसे वो डेट वाइज चलती रहती है 12 महीनों की। सो कैश बुक इज़ बिग इन साइज, ह्यूज। अब देखना, डोनेशन मिला 1 तारीख को, 5 को डोनेशन मिला, 10 को डोनेशन मिला, 25 को डोनेशन मिला, 30 को डोनेशन मिला, अगले महीने डोनेशन पर डोनेशन। हो सकता है साल में 100 एंट्री डोनेशन की हो, 500 एंट्री डोनेशन रिसीव की हो। तो जब आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा, उसमें आप यहाँ लिखेंगे टू डोनेशन, वो भी सिर्फ एक बार। सारी डोनेशन का अमाउंट जुड़ जाएगा और वो इकट्ठा होकर सिर्फ एक ही बार दिखेगा। तो क्या समझ में आ रहा है? इट इज़ अ समरी। डिटेल में कहाँ मिलेगा अपने को? कैश। और समराइज फॉर्म में कहाँ मिलेगा आपको? रिसीट। गॉट इट? अब मैं कहूँ 12 बार किराया पे करा है, तो हर महीने की एक एंट्री, बाय रेंट, बाय रेंट, बाय रेंट, बाय रेंट। यहाँ कितनी बार रेंट दिखेगा बेटा बोलो? एक बार। और यहाँ टोटल अमाउंट साल भर का आ जाएगा। समझे बात आप? ऐसे में कहूँ फॉर एग्जांपल प्रीस्ट को सैलरी पे करी, तो यहाँ सैलरी 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 12 बार सैलरी। यहाँ कितनी बार सैलरी? एक बार। सो इसीलिए इसको क्या शब्द बोल दिया गया? इट इज़ अ समरी ऑफ कैश एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शन, या कैश बुक की समरी कह सकते हो। अगला पॉइंट लिखो, ऑल रिसीट्स, ऑल रिसीट्स, ऑल रिसीट्स
ब्रैकेट में लिखना रेवेन्यू एंड कैपिटल, ब्रैकेट में लिखो रेवेन्यू एंड कैपिटल, ब्रैकेट क्लोज, आर शोन ऑन डेबिट साइड, are shown on debit side, are shown on debit side, and all payments, and all payments, ब्रैकेट में लिखना रेवेन्यू एंड कैपिटल, रेवेन्यू एंड कैपिटल, रेवेन्यू एंड कैपिटल, ब्रैकेट क्लोज, आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड, are shown on the credit side. लिखा। अब हाइलाइटर उठा के ये 4 चीज़ें मार्क करो। ऑल रिसीट डेबिट, ऑल पेमेंट्स क्रेडिट, ऑल रिसीट डेबिट, ऑल पेमेंट्स क्रेडिट, 4 चीज़ें मार्क करके डन कह दो। गुड। सबका मार्क हो जाए तो मैं फिर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगी इस पॉइंट को। Should I begin? अब आप बात देखिए, इसी पॉइंट से हमें 2 इम्पॉर्टेंट बातें निकल के हमारे पास आ रही हैं। वो क्या हैं? सबसे पहले तो फॉर्मेट, आपके पास अगर पैसा आ रहा है इनफ्लो तो आप डेबिट में लिखते हैं, पैसा जा रहा है आउटफ्लो क्रेडिट में लिखते हैं। ये एक बेसिक मीनिंग निकला। क्लियर है आपको सबको? दूसरा देखो, जो ब्रैकेट है उसने बड़ी गहरी बात कर दी। कह रहा है यहाँ पे रेवेन्यू एंड कैपिटल, रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू का मतलब होता है एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। रेवेन्यू मतलब रूटीन की चीज़ें। क्या बोला जा रहा है? रूटीन, डे टू डे वाली जो होते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स, कौन से अकाउंट्स? नॉमिनल। टेम्पररी अकाउंट्स रूटीन नेचर का, खर्चे कमाई जिसमें आते हैं, वो भी इस अकाउंट में आएंगे। और आगे लिखा है एंड कैपिटल, या कैपिटल से तात्पर्य कैपिटल नहीं है, या कैपिटल से तात्पर्य है कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स, मतलब एसेट खरीदना, एसेट बेचना, एसेट खरीदना, एसेट बेचना, वो ट्रांजैक्शन भी इसमें आएंगे। क्या बोला है इसमें? क्या क्या आ रहा है बताइएगा? रेवेन्यू भी और कैपिटल भी। तो अब आप मेरे पॉइंट्स को सुनिएगा और बताइएगा कि ये यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। मैंने कहा फर्नीचर बेचा, पैसा मिला, क्या ये आएगा? फर्नीचर खरीदा, पैसे गए, आएगा। फर्नीचर उधार खरीदा, अब आएगा? क्यों नहीं आएगा? कैश है ही नहीं ना, तो ये तो तभी आएगा ना जब कैश का मूवमेंट हो रहा हो। कैश ही नहीं है तो क्यों आएगा? बताओ। मशीन खरीदी, आएगा? मशीन बेची, न्यूज़पेपर खरीदे, स्टॉक खरीदा, स्टॉक उधार खरीदा, बिजली का बिल दिया, बिजली का बिल उधार है, सैलरी दी, एडवांस सैलरी दी, एडवांस सैलरी दी, आएगा नहीं आएगा? क्यों आएगा? कैश का मूवमेंट है। तो यार ये बात नहीं चल रही इस साल का है कि पिछले साल का है कि अगले साल का है। दैट्स नॉट द पॉइंट एट ऑल। इट्स वेरी सिंपल। टेक इट सिंपली, कैश का मूवमेंट। कैश मतलब बैंक इंक्लूडेड। पैसा आ रहा है, आएगा, पैसा जाएगा तो भी आएगा, खत्म बात। बट जहाँ जहाँ नॉन कैश हुआ नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन, जल्दी बताओ। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम, बोलो हाँ या ना? आवाज़ अपने आप जब हल्की होने लगे तो इसका मतलब अक्रूड इनकम विल नॉट कम, अक्रूड इनकम विल नॉट कम। क्या मतलब है अक्रूड इनकम का? ड्यू बट नॉट रिसीव, नॉट रिसीव ना, नॉट रिसीव, नॉट रिसीव। पैसा है ये तो क्यों आएगा? नहीं आएगा। से यस और नो? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्यों आएगा? पैसे आ गए, पैसे आ गए। अच्छा सुनो बात, पिछले साल, पिछले 2 सालों से कोई पैसा हमारा रखा बैठा था, इस साल दे दिया। पैसा तो पिछले साल का है, कब का है? पिछले साल का। वो दिए इस बार, आएगा नहीं आएगा? अरे तो पिछले साल का था। पैसे आए कब? कब आए? इस साल बस आएगा। किस साल से संबंधित है उसका कोई मतलब ही नहीं है। बस बात सिंपली क्या है, अगर इस साल कैश आया या गया, इट विल कम इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट।
आर यू क्लियर विद दिस? अगली बात सुन, कोई एम्प्लॉई है, कोई एम्प्लॉय कहता है देखिए साहब, मैं पिछले 10 सालों से आपके साथ जुड़ा हूँ, पैसों की मुझे ज़रूरत है, आने वाले साल की पूरी तनख्वाह अभी से दे दो, नेक्स्ट ईयर की पूरी तनख्वाह अभी से दे दो। हमने कहा ले लो, अब बताओ आएगा नहीं आएगा? अरे वो तो नेक्स्ट ईयर का है, काम किया ही नहीं उसने अभी, तो भी आएगा। क्यों? कैश का मूवमेंट है। तो यहाँ से क्या देखा जाता है बताइए? कैश का मूवमेंट। इज दैट क्लियर? डेटर से पैसे मिले तो, क्रेडिटर को पैसे दिए तो, जमीन बेची नहीं आएगा, या आएगा? तो मैडम आप यूँ कहें, जमीन बेची पैसा तो मैं ले लेंगे, और अगर उधार बेची जमीन ऐसे ही नहीं आया तो कहाँ नहीं आएगा? क्लियर है ना बेटा? क्या कह रहा है? पूरी सैलरी लेके गायब हो गया, इसलिए वो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, कोई नहीं दे रहा। खत्म बात। सेकंड पॉइंट पढ़ो जो आपने अभी लिखा, रीड करो और एक एक शब्द में क्लैरिटी देखो क्या क्लियर है। ऑल रिसीव, सारा जो पैसा आए, चाहे रेवेन्यू चाहे कैपिटल, कौन सा साइड आएगा? डेबिट। सारे पेमेंट, चाहे रेवेन्यू चाहे कैपिटल, कौन सा साइड आएगा? क्रेडिट साइड। डन। तीसरा पॉइंट लिखो, नॉन कैश आइटम्स are not shown in it. Non-cash items are not shown in it. Non-cash items are not shown in it. Non-cash items are not shown in it. चलो मुझे फटाक से ज़रा 5-7 एग्जाम्पल बता दो नॉन कैश आइटम के। डेप्रिसिएशन, गुड, और अब डेप बोलते हो, फिर दूसरा बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, बहुत शानदार, वही भाई भाई है ना, दूसरा अलग बोलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, गुड। तीसरा अक्रूड इनकम, मेरे को दे मारो, बहुत शानदार। तीसरा, चौथा खत्म, क्या बोल रहा? क्रेडिट सेल, गुड, बाबा सेल में गई, परचेस पकड़ लो, खत्म, क्या हो गए 5। और कुछ बैड डेट, नॉन कैश, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हाँ या ना? चल ठीक, डन। क्या अमोर्टाइजेशन, बेटा इतनी लंबी स्पेलिंग लिखने की मेहनत करी कहाँ है आपने? डेप के बाद तो अमोर्टाइजेशन क्यों भी आ जाता है? चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, all cash transactions of current year, all cash transactions of current year, all cash transactions of current year, इस साल के जो भी कैश का आदान प्रदान है, all cash transaction of current year are recorded in it, are recorded in it, are recorded in it, are recorded in it. All cash transaction of current year are recorded in it. क्या ये डन है? ठीक। अगला लिखो, इट इज़ अ रियल अकाउंट, इट इज़ अ रियल अकाउंट, इट इज़ अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जानते हो क्या होता है? एसेट से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? एसेट, और ये एसेट ये तो दर्शा रहा है ना, कैश दर्शा रहा है, तो इट इज़ अ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इट इज़ मेंटेन्ड ऑन कैश बेसिस, ये सब वो ट्रू फॉल्स के लायक हैं पॉइंट्स। इट इज़ मेंटेन्ड ऑन कैश बेसिस, इट इज़ मेंटेन्ड ऑन कैश बेसिस। कैश बेसिस मतलब क्या हो गया? वही कैश का आना जाना, बस उसको समझ लेना है। चलिए बढ़िया, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आप लोग ये फॉर्मेट बनाइए अपनी कॉपी में तीव्र गति से। सबसे पहले तो ऐसे सेंटर पार्टीशन कर लो और फॉर्मेट बना लो, फिर मैं जूम करती जाऊंगी ताकि आपको विजिबल रहे। पहले तो आप एक टी शेप्ड अकाउंट बना लो, अपना स्केल लाया करो, ऐसा नहीं अपन बेचारा दूसरे के सामने हाथ फैलाएं। क्या आपने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया? स्ट्रक्चर जूम कर दूँ? मैं जूम कर दूँ ताकि प्रॉपर लिखते चलो। सबसे पहले टॉप में आएगा इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ
इन द बुक्स ऑफ, जो भी उस एनपीओ का नाम है वो आ जाता है टॉप पे, इन द बुक्स ऑफ, ठीक है। अगला लिख लो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। फिर लिख लो फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग। कॉलम हेडिंग्स डाल दो रिसीट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, रिसीट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, रिसीट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। रिसीट साइड डेबिट में लिखना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बचिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है? पिछले साल का कैश और बैंक बैलेंस, पिछले साल का कैश और बैंक बैलेंस जो बचा था, ओपनिंग बैलेंस। गुड बेटा, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। और क्रेडिट साइड भी लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या तुम्हें ये क्रेडिट में लिखते से फीलिंग आ गई लाइबिलिटी की? बोलो हाँ या ना। क्रेडिट आता है तो क्या किसका ओपनिंग बैलेंस होता है? लाइबिलिटी। किसका? लाइबिलिटी। ब्रैकेट में आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट और ये यहाँ अमाउंट आ जाएगा। क्वेश्चन का है स्टार्टिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट था, यहाँ लिखना, और अगर वो बोले कैश और बैंक बैलेंस था, यहाँ लिखना। अब ऐसे लिख लो, ऐसे इनफ्लोज, इनफ्लोज सारे यहाँ आएंगे, आउटफ्लो यहाँ आएंगे। इनफ्लो यहाँ, आउटफ्लो पेमेंट साइड, इनफ्लो आउटफ्लो। इज इट डन? नीचे लिखो लास्ट में बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैश बैंक, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैश बैंक, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैश जो भी है, बैंक जितना भी है, और टोटल बाहर। और डेबिट में लिखो टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। ब्रैकेट में लिखना बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। फॉर्मेट आपका डन हो तो मुझे इन्फॉर्म करें। कितनों का फॉर्मेट बन रहा है? बन रहा है, मतलब सबका डन है। चलिए ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो ज़रा फटाफट से, ये क्रेडिट में अगर इधर आ रहा है बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये क्या है? एसेट है लाइबिलिटी? जल्दी बोलो, एसेट है, पक्का है एसेट। और इस साइड आता है तो, और इसको बैलेंस कौन सा कहते हैं? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट ना, डेबिट कहते हैं। अच्छा, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? टोटल ऑफ डेबिट इज ग्रेटर देन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, इसको क्या कहते हैं? डेबिट बैलेंस। तो लिखते आप क्रेडिट में हो, लेकिन वो होता कौन सा है? डेबिट बैलेंस। मतलब पैसा जो आया रिसीट वाला साइड वो क्या है? ज़्यादा, और पेमेंट वाला जो गया वो क्या है? कम। और ये क्या बताता है? इतना पैसा बच गया, इतना पैसा बच गया। चलिए डन, ये बात तो सॉर्टेड है। हम जा रहे हैं आगे, और हेडिंग लिखेंगे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नंबर 2 डाल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डाली हेडिंग सभी ने। अब आप इसमें पहला पॉइंट लिखो, इट इज़ सिमिलर टू P&L अकाउंट, इट इज़ सिमिलर टू P&L अकाउंट। ये छोटी सी बात अगर याद रख ली, क्वेश्चन बहुत हद तक आसान हो जाता है। हम बहुत सारी मिस्टेक्स अवॉइड कर पाते हैं अगर इस पॉइंट को हमने दिमाग में रख लिया तो। क्या लिखा आपने? इट इज़ सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट। आता है बनाना, भले ही एडजस्टमेंट कोई ख़ास ना आते हो, बेसिक तो आता ही है। पहले क्या लिखते हो, खर्चे या कमाई? अरे P&L अकाउंट में पहले क्या लिखते हो? यहाँ एक्सपेंसेस या इनकम, और यहाँ क्या लिखते हो? ऐसे ही है ना। अब इस बेचारे गरीब का जो नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, भले नाम पहले इनकम है, लेकिन ये किसके जैसा है? बोलो P&L। तो यहाँ पहले क्या आता है? एक्सपेंडिचर, यहाँ क्या आता है? इनकम। ये क्लियर है बच्चे? पता है क्या करके आते हैं? एग्ज़ाम में जाते हैं और यहाँ लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कहते हैं मैम नाम था ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर।
मतलब प्रेशर इज फाइन बट वी कैन नॉट डू दिस एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम सेइंग फ्रॉम एग्जाम की मंगाई हुई कॉपी. इनकम एक्सपेंडिचर पूरा उल्टा सॉल्व करके आ गए कि मैं इंस्टीट्यूट स्टेप मार्किंग ही नहीं करता. कौन से स्टेप की मार्किंग करें, सब बदल डाला था. तो ध्यान रखने वाली बातें हैं. पहले क्या आएगा आपका एक्सपेंडिचर. सेम किसकी तरह है ये पीएनएल. चलो लिखो ज़रा नेक्स्ट पॉइंट. क्योंकि ये पीएनएल की तरह है, पहला पॉइंट लिखो ओनली expenses and income. Only expenses and income. Only expenses and income. मतलब लिखो revenue nature item. Revenue nature item. Revenue nature item. Come in income and expenditure account. Come in income and expenditure account. Only expenses and income, that is revenue nature item, come in income and expenditure account. क्या ये बात लिखी है आपने? अब ये लिखने के बाद ज़रा पेन रख के बात को प्रोसेस करिए. क्या कह दिया इस पॉइंट ने और इसके कहते से क्या ये पिछले से बहुत अलग हो गया? पिछले में क्या लिखा था पॉइंट याद हो? ऑल रिसीव ब्रैकेट में क्या था? रेवेन्यू एंड कैपिटल दोनों ही आते थे. या इसने किसको फेंक दिया? किसको फेंक दिया? कैपिटल को हम लेंगे ही नहीं, एंटरटेन ही नहीं करेंगे. कौन आएगा यहाँ? सिर्फ रेवेन्यू. क्या आएगा? रेवेन्यू. अब मुझे बताओ, हमने अगर एसेट खरीदा इसमें आएगा या नहीं आएगा? मशीन खरीदी, ज़मीन खरीदी, ज़मीन बेची, मशीन बेची, नहीं आएगा. और यहाँ आने क्या वाला है? रेवेन्यू नेचर आइटम. अब मैं कहूँ रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डोनेशन मिला, आ ही जाएगा. क्यों नहीं आएगा? डोनेशन तो हर साल ही मिलता है, उनका तो धंधा ही है, मतलब कमाई इसी से है उनकी. तो डोनेशन आएगा नहीं आएगा? आ जाएगा. ठीक है, चलिए आगे लिखिए. कैपिटल नहीं आता. कैपिटल नेचर कट लगा दो. कैपिटल नेचर बड़ा सारा कट लगा दो. ये नहीं आता यहाँ. और ऐसे ही लिखो जैसे मैंने लिखा है. एसेट नहीं आते, लाइबिलिटी नहीं आते. लोन लिया, इसमें आएगा क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं. लोन लिया नहीं आएगा. लोन चुकाया नहीं आएगा. यहाँ सिर्फ क्या आ रही? कमाई और खर्चे. कमाई और खर्चे, बस वही आता है. तो लिखो एसेट नहीं आता, लाइबिलिटी नहीं आता. फिर लिखो यहाँ पर कहाँ जाता है? बैलेंस शीट. बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में का ये सब हम ले लेते हैं. बैलेंस शीट में कौन मिलता है? एसेट. और कौन मिलता है? लाइबिलिटी. तो बाबर ने क्या करा? ऐसे काम बांट लिए. किस किस से काम बांट ली? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर ने किसको रख लिया? एक्सपेंडिचर और इनकम्स को, रेवेन्यू नेचर आइटम. बैलेंस शीट ने किसको रख लिया बताइए? कैपिटल नेचर आइटम, एसेट और लाइबिलिटी. तो बंटवारा कर दिया काम का. फिर बताओ मुझे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या रख रहे हैं अपन? रेवेन्यू नेचर. और बैलेंस शीट में क्या रख रहे हैं अपन? एसेट और लाइबिलिटी, कैपिटल नेचर आइटम. गुड. आगे लिखिए आप. यहाँ फॉलो होता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट. यही वो है जो सारी अकाउंट्स की दुख दर्द पीड़ा की वजह है. क्या फॉलो होता है यहाँ? अक्रूवल कॉन्सेप्ट. वहाँ बताओ पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा था? कैश. यहाँ क्या फॉलो हो रहा है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट. अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आप में से मुझे कोई बताए? हाथ उठाकर. जनता जवाब नहीं चाहिए मुझे, स्पेसिफिक आंसर चाहिए. हाँ बेटा बोलो. सारे एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्ड होना चाहिए चाहे वो. ये कैसी बात है? थोड़ा शब्द सोचो. और एक मिनट लेकिन ठीक है, तुम बोल सही रहे हो, बस शब्द थोड़े ऊपर नीचे बैठो. हाँ बेटा.
when they are realized not paid. And how is realized different from paid? बैठो थोड़ा अभी उसमें और इम्प्रोवाइजेशन आएगा. मैम all transactions related to current year. All transactions related to current year, whether it was incurred or not incurred, are recorded in the are known in accrual. फिर से बोलना शांति से. All transactions which are done at current year, or we can say all expenses and income which are done at current year can be recorded in accrual concept, whether it was incurred or not. मतलब जो भी ट्रांजेक्शन करंट ईयर से रिलेटेड है वो सभी है. देखो खुद ही वो एक्सप्लेनेशन, पहले कुछ गलत शब्द बोल रहा था, बोलते बोलते मैंने कहा शांत, तो नॉर्मल तो सही शब्द पे आने लगा, लेकिन फिर थोड़ा सा हिला. घबराना नहीं होता, शांति रखने की है अपने को. ये सारी बताइए ये क्लास किसकी है? आपकी. किसकी है? आपकी. मैं किसकी हूँ? आपकी. पढ़ाई किसकी है? आपकी. तो जब सब अपना ही है तो लोड करें. नो चिंता, सब अपने, कोई घबराहट की बात नहीं. कौन अगला ट्राई कर रहा है? एक्रूअल कंसेप्ट है क्या बता? पूरा अकाउंट्स पढ़ लिया है तुमने? पीछे वाला बच्चा. I am so sorry to disturb you. Please pass this mic. I am really sorry. But I just want everybody hears you better. Please pass the mic at the fastest possible speed. Ma'am, all expenses. कर दिया. Ma'am, all expenses which are incurred in a year, it doesn't matter if they are paid or not, and all expenses, income which are earned in the year, it doesn't matter whether we have received or not. Good. Why did I clap? Not because he was right, because whatever he was saying, he was thinking and speaking. So think and speak. Don't just speak because now we have to. Think and speak. So you maintained that patience and you spoke perfectly. दोनों एंगल पकड़े पहली बार तो उसने एक्सपेंस भी और इनकम भी, तो रियली नाइस. अब हम आए जरा मुद्दे पर, सभी बच्चे साथ. अक्रूअल कंसेप्ट इतनी सी बात कहता है कि अगर कोई खर्चा है जो इस साल हुआ है, कोई खर्चा है जो इस साल इनकर हुआ है, भले ही आपने उसके संबंध में पैसे दिए हों या ना दिए हों, उसको इस साल का खर्चा दिखाया जाएगा. और अगर कोई कमाई जो कि आपको इस साल हुई हो, भले ही उसके संबंध में पैसा आया हो या ना आया हो, आप उसको अपनी इस वर्ष की कमाई दिखाएंगे. या आप सबको पता है, सही कह रही हूँ ना? कौन सा मैं नई बात कह रही हूँ? 80% को तो पता ही हो, घर से बोलेंगे. अक्रूअल कंसेप्ट क्या कह रहा है? कोई भी खर्चा जो इस साल इनकर हुआ, क्या हुआ है इस साल? इनकर. भले ही आपने उसके पैसे दिए हों या आपने पैसे ना दिए हों, उसको इस वर्ष का एक्सपेंस दिखाएंगे. और इनकम इस साल अगर हुई है, भले ही पैसे मिले हों या ना मिले हों, उसको इस साल की कमाई दिखाई जाएगी प्रॉफिट निकालने के लिए. इसको क्या बोला जाता है? अक्रूअल कॉन्सेप्ट. अब बात को 2 मिनट सुनो ज़रा. जैसे मैं कहूँ आपसे, सपोज है कोई व्यक्ति है, वो ट्यूशन पढ़ाता है. अब उसने ट्यूशन किसी को पूरे महीने पढ़ाया, बोला भाई दे दो फीस. अब तो बोलता है कि इस महीने नहीं, अभी और पढ़ा दीजिए, अगले महीने दे देंगे. अगले महीने भी पढ़ा दिया. ऐसे पढ़ते पढ़ते पूरे साल ही पढ़ लिया. बेचारा सीधा टीचर था. अब मुझे तुम ये बताओ कि जब साल एंड हो तो क्या बोलेगा वो टीचर? कोई कमाई उसकी हुई है कि नहीं हुई? कह रहा नहीं, पागल बना दिया उसे. तो हुई है कि नहीं हुई? हुई. आपको ये बोलना चाहिए मेरे सवाल के बाद, मैम आप कॉन्सेप्ट बताइए, आपको कौन से कॉन्सेप्ट मुताबिक जवाब चाहिए. यहाँ अगर मैं आपसे कहती मुझे कैश कॉन्सेप्ट का आंसर दो, तो आप कहते 0, कुछ मिला ही नहीं तो कोई कमाई नहीं. बट जैसे ही आपसे मैं कहूँ अक्रूअल कॉन्सेप्ट, तो आप कहते हो भले ही रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, अगर ड्यू हो गया. क्या बोला मैंने? ड्यू हो. ड्यू का मतलब आपका अगर अधिकार स्टैब्लिश हो गया है. फिर से समझो लॉ के हिसाब से क्या हुआ? आपका अधिकार स्टैब्लिश. आप पैसा निकालने का दम रखते हो, दम नहीं रखते अलग बात है, मतलब कोर्ट से जाके हक रखते हो. सही शब्द क्या बोलना चाहिए मुझे? पैसा लेने का हक रखते हो. अधिकार स्टैब्लिश हो गया है तो वो आपकी उस साल की कमाई है.
और खर्चा कब है? जब अगला व्यक्ति ने आपको काम करके दे दिया। क्या बोला मैंने? अगले ने आपको काम करके दे दिया। आपने पैसे दिए हो या ना दिए हो, अगर आप पे जिम्मेदारी आ गई है कि आप उसको पे करें क्योंकि आपने सर्विस ले ली, तो अब वो आपका एक्सपेंस है। इज़ दैट क्लियर? हमने रेंट दिया हो या ना दिया हो, अगर किसी की जगह में रह लिए तो क्या वो हमारा इस साल का एक्सपेंस है? यस। हमने तनख्वाह दी हो या ना दी हो, अगर हमारे एम्प्लॉय ने महीने भर काम कर लिया, क्या ये हमारा एक्सपेंस है? यस। समझ रहे हैं हम बात? हम किसी की दुकान पे गए, हमने कहा भाई उधार सामान दे दिया उसने, हम सामान लेके आ गए, अपनी दुकान पे रख लिया, पैसे दिए नहीं, क्या ये जो परचेज करा ये एक्सपेंस है? यस। क्यों है? क्योंकि सामान तो ले आए ना, तो अब तो अपनी जिम्मेदारी स्टैब्लिश हो गई, वी नीड टू पे दैट पर्सन, तो ये आपका एक्सपेंस है। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट और टेक्निकली सही कॉन्सेप्ट है, बस बच्चों के लिए समझने के लिए डिफिकल्ट है, इसी के चक्कर में सारे एडजस्टमेंट आ जाते हैं। अदरवाइज इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। ऐसी आप इनकम बताइए जब वो रिसीव हो रही है तब कमाई है? नहीं। कब हो रही है वो कमाई? जैसे ही आपका अधिकार स्टैब्लिश हो जाए कि हाँ ये पैसा आपको मेरे को लेना बनता है, आपका राइट बन जाए, बस वो आपकी इनकम हो गई। क्लियर हो गया? अब मैं कहूँ कोई व्यक्ति है, कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कोई पहुँचा, बीमार था, ऑपरेशन होना था, डॉक्टर ने बेचारे ने बाई चांस तरस खा के कहा चलो हम ऑपरेट कर देते हैं, बाद में अरेंज कर लेना पैसे। बताइए आपके हॉस्पिटल की इनकम है कि नहीं? पैसे मिले या नहीं मिले, क्या इनकम मानी जाएगी? यस। क्यों मानी जाएगी इनकम? अक्रूवल कॉन्सेप्ट के तहत जब काम जैसी कर दो वो क्या हो जाता है? आपकी इनकम। क्लियर है आपको बात? तो अब जो आपका ये अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें फॉलो क्या होता है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है, तो आपने अक्रूवल कॉन्सेप्ट लिखा, अब ज़रा इसको लिखिए इसके आगे। इनकम कब मानी जाएगी? इनकम कब मानी जाएगी? लिखो ऐसे ही, इनकम कब मानी जाएगी? तो उसमें आप लिखिए सर्विस दे दी, मतलब हमने अपना काम कर दिया, सर्विस दे दी। जैसे ही मतलब ड्यू हो गया हो, अधिकार स्टैब्लिश हो गया हो, भले ही सेटलमेंट हुआ या ना हुआ। सेटलमेंट से क्या समझते हैं हम? भले ही पैसा मिला हो ना मिला हो। और एक्सपेंस के लिए लिखिए खर्चा कब मानेंगे? खर्चा कब मानेंगे? तो क्या लिख रहे हैं हम? सर्विस ले ली। अगले से आपने अगर काम करवा लिया, सर्विस ले ली, तो बस वो आपका खर्चा है, भले ही सेटलमेंट हुआ हो या ना हुआ हो। दिल से मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें ये पॉइंट क्लियर हो गया? पक्का? लिख लिया है अपन ने ये? अभी मैं थोड़े से इसी से रिलेटेड कुछ सवाल और पूछूंगी। लिख लिया हो आप लोग ने तो डन बोलो, फिर मैं कुछ नोट और कराऊंगी चीज़ें, लेकिन हम क्वेश्चन पोर्शन पे आ रहे हैं, पेन वेन रख के सब ध्यान से सुनेंगे। मुझे बताइए, आप कोई एम्प्लॉई है, ऐसे खड़े खड़े करके तुम्हें एग्जाम्पल देती हूँ, तुम खड़े सुनिएगा। ये एम्प्लॉई भाई साहब हैं, मेरी कंपनी में काम करते हैं, इनको मैंने एडवांस में आने वाले साल की 2 महीने की तनख्वाह अभी से दे दी। आने वाले साल के 2 महीने की तनख्वाह मैंने इनको अभी से दे दी, पैसे गए मेरे। मुझे बताइए क्या अक्रूवल कॉन्सेप्ट के तहत मेरा एक्सपेंस हुआ कि नहीं? फटाफट पैसे चले गए, पैसे चले गए। अक्रूवल कॉन्सेप्ट के तहत एक्सपेंस है कि नहीं है? नो। पक्का? हाउ मेनी से हुआ है? इतने लोग सब गलत जिसने हाथ उठाया। दी आंसर इज इट्स नॉट दी एक्सपेंस। बाय अभी लिखा आपने, अभी लिखा। अगर आपने सर्विस ले ली, सर्विस अगर आपने ले ली, खर्चा तब है, नॉट जब आपने पैसे दे दिए। पैसे हमने पहले से दे दिए, अभी काम थोड़ी ना करा है हमने। जब ये वो 2 महीने बराबर हमें काम करके दे देंगे, तब वो हमारा खर्चा बनेगा। बात समझ आ गई? बैठिए। चलिए तुम खड़े हो बेटा। अब आप लोग सब ज़रा गौर से सुनिएगा। ये हैं सेठ जी, बहुत पैसा है इनके पास, ठीक। अब गौर से, मेरी दुकान, इन्होंने मुझसे कहा कि इतना इतना माल ऑर्डर होना है, तो मैंने कहा एक काम करो, पहले से दे दो पैसे। तो इन्होंने कहा कितने चाहिए? मैंने कहा पूरे ही दे दो, भला हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग करा लेंगे। इन्होंने पूरे पैसे दे दिए। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है 10 लाख के सामान का, पूरा 10 लाख ये लीजिए। इनका ओके,
पैसे आ गए मेरे पास। अब मुझे सोच के बताइए क्या ये मेरी इनकम हो गई कि नहीं? पूरे 10 लाख मिले हैं, इनकम हुई कि नहीं? क्यों नहीं हुई? आप ये बताओ, जो पैसा मुझे इनसे मिला मैंने क्या इन्हें सर्विस दे दी कि नहीं दी? जब सर्विस ही नहीं दी तो आपका अभी राइट स्टैब्लिश नहीं हुआ। सर्विस दी ही नहीं तो राइट स्टैब्लिश नहीं हुआ। सो दिस इज नॉट आवर इनकम। देन मैम व्हाट इट इज? जो मिला मुझे पैसा वो क्या? इट इज अ लायबिलिटी। व्हाट इट इज? लायबिलिटी। I have that pressure on my head that I have to give service in future. So it's a liability, it is not income. So will it come in this account? कौन सा अकाउंट पढ़ रहे थे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? नो, नॉट एट ऑल। क्लियर? अब सुनो आगे बात। मैंने अब इनको 2 लाख का माल बना के दे दिया। अब बताइए क्या होगा? 2 लाख बराबर इनकम होगा। फिर मैंने 2 लाख को मैं इनकम में दिखा दूँगी। कहाँ से हटा दूँगी? लायबिलिटी से हटा दूँगी। कहाँ दिखा दूँगी? इनकम। फिर मैंने 3 लाख का माल और बना के दे दिया। अब क्या करूँगी? 3 लाख लायबिलिटी से हटाऊँगी और इनकम। फिर मैंने 5 लाख का और माल दे दिया। 5 लाख लायबिलिटी से हटाऊँगी और इनकम लेना। बात समझ आ गई? ठीक, बैठो बेटा। आई होप आप लोग को थोड़ा दिमाग में बात जा रही है। येस, परफेक्ट। लायबिलिटी से हटाते जाएंगे और इनकम में दिखाते जाएंगे। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट। बेटू तुम खड़ी हो। ये जो मालिकिन है हमने इनके यहाँ किराए पे जगह ली हुई है, ठीक है। तो हमने इनसे कहा कि आप प्लीज़ हम पे थोड़ी मेहरबानी करें, कृपा करें, जगह दे दें और किराया दे देंगे हम आपको बाद में। तो इन्होंने कहा ठीक है। आपको देख के मुझे तरस आया, मैंने आपको जगह दे दी। अब मैंने 1 महीना यूज़ करी, 2 करी, 3 करी, करीब देती हूँ। मैंने कहा ठीक, शुरुआत का दौर है, हम आपके साथ हैं, चिंता ना करें। 12 महीने पूरे हो गए, मैंने इनको अभी कोई किराया दिया नहीं है। अब एंड ऑफ द ईयर पे मैं खड़ी हूँ। अब मुझे ये बताइए, मुझे अपनी बुक्स बनानी है, क्या मैं एक्सपेंस रेंट को दिखाऊंगी या नहीं? हाँ या ना? कुछ नहीं दिया मैंने इनको अभी तक। सर्विस ले ली, बिल्कुल सही पकड़ा, गुड। सर्विस जैसे ही आपने ले ली वैसे ही वो आपका एक्सपेंस हो गया। क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे आ गई है? यस। और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, विल शी शो इट एज एन इनकम? यस और नो? यस। Will she show it as income? Yes. Why? पैसा मिला ही नहीं भले ही उसको, लेकिन सर्विस दे दी। So it's not when the settlement takes place. It is actually when the responsibility to receive or give जो भी है वो पूरी हो गई। बस, बेटर, गुड। आई थिंक आपको कहानी क्लियर सबको अच्छे से। पैसे तो मिलेंगे, क्या होगा? पैसे एमओजी पैसों की भेज रहे हैं, बेहतरीन। कैश। चलो, यहाँ तक बात डन है। अब मैं तुम्हें कॉपी में करने कुछ दे रही हूँ पॉइंट्स। मेरी क्लास कितने बजे तक है? कितने? 6:45। चलो ठीक। आई ऐसी बात नहीं किया करो, ऐसा लगता है मरने वाले। 7 मिनट और है, बस कर लो जो कर सको। क्या? अच्छा, इसलिए बोल रहे हो? फिर चलेगा। लिखो चल के पॉइंट। अरे ये क्यों हल गया? ऐसा स्टेटमेंट बनाओ टेबल और पहला लिखो प्रीपेड सैलरी। आ रहा है। प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड, कम ऑन फास्ट। प्रीपेड सैलरी। इसके साइड में ना 2 कॉलम बनाएंगे अपन, और उन कॉलम में अपन लिखेंगे, एक में रिसीट एंड पेमेंट और एक में लिखेंगे अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जिसमें आएगा उसमें आप टिक लगाएंगे, जिसमें नहीं आएगा क्रॉस लगाएंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर शांति से करना। प्रीपेड सैलरी। अगला लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तीसरा रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। कितने लोग 3 पॉइंट लिख चुके? चलिए बढ़िया। नंबर 4 डोनेशन रिसीव्ड फॉर रूटीन एक्सपेंसेस। और नंबर 5 लिखो लॉस बाय फायर। तो फर्नीचर जल गया या स्टॉक जल गया, कुछ भी जल गया। कितने पॉइंट लिखे आपने? 5। अब आपको दिमाग लगा के, जल्दी मत करना, सोच के
जो लगे रिसीट पेमेंट में आएगा टिक लगाओ, नहीं आएगा क्रॉस लगाओ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा टिक लगाओ, नहीं आए क्रॉस लगाओ। और उस बच्चे की ताली बजवाई इसलिए थी क्योंकि उसने सोच के बोला था। ऐसे ही आप सोच के काम करेंगे तो ही मुझे खुशी होगी। जल्दी नहीं चाहिए मुझे, सही चाहिए। क्या कहते हैं, इज इट डन? कितनों का काम चल रहा है? सुन तो लिया हाथ, एक दो लोग। चलिए तो फिर हम ज़रा शुरू करें। सबसे पहले आ रहा है प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी क्या रिसीट एंड पेमेंट में आएगा या नहीं? हाँ के ना? हाउ मेनी से नो, हाउ मेनी से यस? तीसरी कैटेगरी क्या है जो हाथ नहीं उठा रहे? आलसी कैटेगरी है वो। ये हाथ दुखते हैं हमारे। कितने लोगों का कहना है यस इट विल कम? रेज योर हैंड। ठीक, पूरी आंसर। कुछ तो बात क्यों नहीं उठा रहा है? ऐसे डरे सहमे से क्यों है? चलो, क्या वो मेरे साथ है? मैं डरी सहमी नहीं हूँ। इनकम, अच्छा जब मैं उठा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बताइए कहानी। क्या ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा? यस और नो? वाई नो? क्योंकि सर्विस नहीं ली या नहीं दी? नहीं ली। हम बिजनेस होते हैं, हम एनपीओ हैं, तो हमारे यहाँ जो एम्प्लॉय काम करता है अभी उसने सर्विस हमें दी नहीं है, हमने सर्विस ली नहीं है, खर्चा कहाँ से हुआ हमारा? अभी हमारा कोई खर्चा नहीं। सो इट्स नॉट योर एक्सपेंस। बोलो यस और नो? तो ये खर्चा नहीं है। चलो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बताओ। Will it come in receipt or payment? Yes or no? Why you are saying no? Because it is a non-cash item. अब ये बताओ, will it come in income and expenditure? It will come. It will come because it is actually in the nature of loss. Losses आते हैं. It is in the nature of loss. Losses आते हैं, ये ध्यान में रखना है. Rent received in advance. Will it come in receipt or payment? How many say yes? Receipt and payment में आएगा। Raise your hand tall properly. Okay, put your hands down. How many say no? The answer is yes. Rent क्योंकि received ही है, आ गया, पैसा तो आएगा। Will it come in income and expenditure? Why? सही explanation देना why? Service हमने दी अभी नहीं दी service, तो इसलिए it will not come. Next, donation received for routine expenses. Will it come in receipt payment? Why? Cash out. Will it come in income expenditure? Yes. Because it is actually income. NPO की तो income ही यही होती है, donation मिल जाए लोगों से. Next, loss by fire. Will it come in receipt payment? Why? Cash cushion. Will it come in income expenditure? Yes. Because it is in the nature of loss. How many full correct? पूरे सारे पॉइंट सही? ओके गुड, पुट योर हैंड्स डाउन. रेस्ट ऑफ यू आस्क योर डाउट इफ यू हैव एनी डाउट. आस्क योर डाउट इफ यू हैव एनी डाउट. इज इट डन एंड क्लियर? चलिए, इसके बाद आपकी क्लास कौन सी है? कौन सी? डीपी. डी ये आप फॉर्मेट बना लीजिए प्लीज़. इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बना लीजिए. बच्चे आप कह रहे हैं लॉस बाय फायर रिसीट पेमेंट में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब फर्नीचर में आग लगी हुई है स्टॉक में, तो कैश को तो कुछ नहीं होगा ना, कैश आ रहा है ना जा रहा है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्लियरेंस में आता था ना भैया? ठीक है,
जहाँ कहीं किसी पॉइंट में थोड़ा सा डाउट लगता है, किसको सोच लिया कर लो पॉइंट को, सिमिलर टू PNL। अभी तो तुम बनाओ, मैं इसको थोड़ा डिटेल वाली बात है इसके, इसलिए रैंडम नहीं बोलूँ कुछ में। आप फॉर्मेट बना रहे हैं बेटा, ऐसे बातें कर करके। किसी को कोई पॉइंट में डाउट हो तो वो पूछ लेगा। सबसे पहले आपने टॉप पे क्या लिखा है, इन द बुक्स ऑफ। बच्चा कह रहा है अगर पैसे ही जल गए तो फिर आएगा रिसीट पेमेंट में, बिल्कुल। कौन से साइड आएगा, पेमेंट साइड, बिल्कुल आएगा, उससे कैश बैलेंस कम हो जाएगा ना। पैसे की चोरी हो गई तो भी आ जाएगा। बच्चे ये जो आपके पॉइंट्स लिखे इन द बुक्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, एक्सपेंस डेबिट में, इनकम क्रेडिट में, टू सरप्लस, बाय डेफिशिएंसी या बाय डेफिसिट, दोनों लिख सकते हैं। डेफिसिट लिखना बेटर होता है, और डेफिशिएंसी जो वर्ड है वो ज़्यादातर यूज़ होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर, बाकी डेफिसिट लिख दो चल जाता है। आर यू ऑल डन विद दिस? चलिए ओके। इसमें किसी का कोई डाउट? चौथा था एक बच्चे का डाउट, डोनेशन फॉर रूटीन एक्सपेंसेस। NPO को जो डोनेशन मिलता है, चंदा पेटी में पैसे मिलते हैं, वो उनकी कमाई होती है। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो आएगा, और कैश आए तो रिसीट एंड पेमेंट में भी आएगा। हमें एक्चुअली आगे एडजस्टमेंट्स में डोनेशन पढ़ना ही है, तो वहाँ लिख लेंगे, ठीक है। आप लोग एक छोटा सा काम क्या ये कर सकते हैं कि इसका फॉर्मेट घर पे बना के ले आए? कर सकते हैं? मेरे जितने प्यारे बच्चे हैं वो तो कर सकते हैं, बाकियों को मुझे पता नहीं है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के ले आना। कुछ डाउट है? आगे वाले लोग फ़ोटो लेने के बाद क्या करते हैं? साइड नीचे। हाँ नहीं आ रहा, एंगल ही उधर से। रेड पेन वाला पार्ट भी लिखना है, यस। चलिए सब, आई थिंक फ़ोटो वोटो हो गया। चलिए ओके, बाय बाय एवरीबॉडी। क्या हुआ है? मेरा फ़ोटो खींच रहा है वो